वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। सैटरडे की मॉर्निंग में भी आपका स्वागत है। और सैटरडे की मॉर्निंग में स्वागत का कारण यही है कि योर एग्जामिनेशन इज एट हैंड। और आज मैं वाइंड अप कर दे रहा हूँ आपका सिलेबस आपके लिए, और ताकि आप बेहतर तरीके से प्रिपरेशन कर पाएँ और फिर हम प्रैक्टिस जो है वो कराना शुरू करेंगे, प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे। चलिए, कल हमने बात करी थी सैमुअल टेलर कॉलरिज की, और सैमुअल टेलर कॉलरिज के साथ हमने विलियम हैजलिट और जेन ऑस्टिन की बात कर ली थी। जेन ऑस्टिन के बारे में आपको पता है कि जेन ऑस्टिन वाज अ नॉवेलिस्ट, and during her lifetime she had very much difficulty in getting her novels published, but anyhow she managed her novels to be published after the completion, or she wrote almost all her novels in the last decade of the 18th century, but she got them published in the second decade of the 19th century, and two of them were published posthumously, उसके बाद में भी पब्लिश हुए थे। आइए आज एक और नॉवलिस्ट की बात करते हैं रोमांटिक एज के, और उस नॉवलिस्ट का नाम है सर वॉल्टर स्कॉट। सर वॉल्टर स्कॉट नाम से ही वेरी क्लियर है कि स्कॉट लिखा है, और इसका मतलब कि ही वाज स्कॉटिश, ही वाज नॉट एन इंग्लिश ओरिजिनली, बट ही इज in the category of English novels, or Sir Walter Scott is called the father of historical novels. He is called the father of historical novels. अब हिस्टोरिकल नॉवेल्स क्या होती हैं? इन अ हिस्टोरिकल नॉवेल द राइटर, द नॉवेलिस्ट takes the raw material from history, and in order to make it a novel, he conspires with them with the facts of history, or for the purpose of entertainment, or you could say for the purpose of novels. He also modifies a few facts, modifies a few dates, right? उसको modify कर लेता है, उसको characters, new characters are introduced and old characters are left out, उनको जोड़ा घटाया भी जाता है, और उसको फिर हिस्ट्री से फिक्शन बना दिया जाता है, उसी को हिस्टोरिकल फिक्शन कहा जाता है। और सर वॉल्टर स्कॉट इसके फादर कहे जाते हैं हिस्टोरिकल नॉवेल्स के। दो ही वाज राइटिंग इन द रोमांटिक पीरियड, बट इन रोमांटिक पीरियड द हिस्टोरिकल नॉवेल्स वर द टाइप ऑफ रोमांस, राइट? वो रोमांस ही हुआ करते थे। जी, रेणु यादव, पूजा वर्मा, चंचल सिंह, सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है आपके क्लास में। हम बात कर रहे हैं सर वॉल्टर स्कॉट की, और वॉल्टर स्कॉट जो कि एक हिस्टोरिकल नावल के फादर कहे जाते हैं, मतलब हिस्ट्री के नावल्स इन्होंने शुरू तो नहीं किए, बट हाँ आपको बताया ही था कि जो परफेक्शन पर पहुंचाने वाला होता है उसे को फादर कहा जाता है। और इन्होंने एक नहीं कई सारी नावल्स लिखी, जिनको इन्होंने जो हिस्टोरिकल नावल्स थी, दे वर सेट इन द डिफरेंट पीरियड्स ऑफ लिटरेरी हिस्ट्री। सम वर सेट इन द 16th century, some in 12th century, and some in his contemporary time, just a century before. Clear? So he popularized the historical novel, that's why he is called the father of historical novels in English literature. Right, G Srishti, very very good morning, Kavi ko good morning. There is nothing to be repeated, Srishti, as I have just started, and the very first point of this going on is written over your screen, and this is Sir Walter Scott, the romantic novelist, is called the father of historical novel because of his high contribution to the novels on historical themes, right? And the second point about Walter Scott is that he is popular for his Waverley novels. He is popular for his Waverley novels. Though Waverley was a single novel, and the Waverley was published with the subtitle Waverley or Its 60 Years Since. This was the title of his novel,
right? Waverly, it is 60 years since, and this novel was a historical novel published by Walter Scott, right? And the novel was published anonymously in 1814, 1814 में एनोनिमसली नॉवेल पब्लिश हुई थी। Anonymously का मतलब है विदाउट bearing the name of the writer on the cover page. The novel was published and the novel became so successful that जो later novel साइंस के बाद उसके कवर पेज पे लिखा होता था by the novelist of the Waverly, right? जो वेवरली का राइटर है उसी ने लिखा है, इतनी पॉपुलैरिटी थी उसकी। स्कॉट was already famous as a poet and he chose to publish it anonymously in 1814 as his first venture into prose fiction, right? First venture into prose fiction मतलब कि Waverly was his first novel as well. Waverly was his first novel, first historical novel, first venture in prose in 1814, published anonymously, right? At first historical novel, it is often regarded as one of the first historical novels in English language, in English literature, right? इसका वेवरली एक्चुअली है कौन? वेवरली इज द नेम ऑफ एन इंग्लिशमैन, प्रोटैगनिस्ट है वो, और उसका नाम है एडवर्ड वेवरली, और उसी एडवर्ड वेवरली के नाम पर उन्होंने उस नॉवेल का नाम ही वेवरली रख दिया था। क्लियर? इससे ज्यादा आपको कुछ यहां से जानने की जरूरत नहीं है। एक पॉइंट ये आप जान लीजिए, खासकर दो स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर जीआईसी और दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर DSSB पीजीटी, उनके लिए जो ये लिखा हुआ है इट्स 60 years since मींस द नॉवेल वाज सेट जस्ट 60 years बिफोर, ऐसे कुछ मतलब होगा तो ही लिखा होगा। The novel was set during the Jacobite uprising in 1745. Jacobite uprising. Jacobite uprising क्या है? आपको ये बात आई होप कि रिमेंबर होगी कि इन 1688 there was a revolution in England called Bloodless Revolution or Glorious Revolution, and in this revolution the King of England James II, who was a staunch Catholic, fled to France without any you could say without any फोर्स, बिना कोई लड़े, बिना वायलेंस के, बिना ब्लड शेड के वहां से भाग जाता है, और इसीलिए उसको ब्लडलेस रिवॉल्यूशन या ग्लोरियस रिवॉल्यूशन कहा जाता है। तो दोज वर द सपोर्टर्स ऑफ जेम्स वर कॉल्ड जैकोबाइट्स। जेम्स फ्लेड टू फ्रांस, और फ्रांस में ही कलेक्टेड फ्यू पीपल और दे रिवोल्टेड अगेंस्ट द इंग्लिश किंग, उसी को जैकोबाइट अपराइजिंग कहा जाता है। And the Jacobite uprising took place in 1745, and his novel, Mr. Walter Scott's first novel, Waverly, was set during that period, during that uprising, that is called Jacobite uprising in 1745. So this is the setting of the novel, right? It is the time of Jacobite uprising of 1745, which sought to restore the Stuart dynasty in the person of Charles Edward Stuart, right? Charles Edward Stuart को वो रिस्टोर करना चाहते थे जो जैकोबाइट्स थे, और उसी के समय की इसकी सेटिंग है जिसको हम जैकोबाइट अपराइजिंग के नाम से जानते हैं, और दैट इज रिफ्लेक्टेड इन द नॉवेल, इन विच नॉवेल? इन वेवरली। क्लियर? तो फॉर टीजीटी ओनली वेवरली, द वेरी टर्म वेवरली इज इंपॉर्टेंट। अगर आपके पेपर में आएगा कि हु इज नोन एज द राइटर ऑफ वेवरली नॉवेल्स, तो आप उसका उत्तर वाल्टर स्कॉट लगा देंगे, इससे ज्यादा आपके पेपर में कुछ नहीं आएगा। दो आई एम गोइंग टू टेल यू ऑफ द नेम्स ऑफ अ फ्यू मोर नॉवेल्स, हिस्टोरिकल नॉवेल्स रिटन बाय वाल्टर स्कॉट। इसी में एक नॉवेल है, इसका नाम है इवानहो।
Ivanhoe is a historical novel published in 1819. And set in the 12th century. The novel Ivanhoe was published in 1819 and the novel is set in England 12th century in the reign of John and Richard the Lion. फिर एक नावल है द मोनास्ट्री एंड द अबोट. द मोनास्ट्री एक नावल ये है और एक नावल है द अबोट. एंड बोथ द novels were set in Scotland during the reign of Queen Mary. Right under Mary Stuart 16th century, set in Scotland under the reign of Mary 16th century. And after this एक और नावल है, नाम है केनिलवर्थ, and that is one of the important novels. And this novel was set during the reign of Queen Elizabeth. The novel was set during the reign of Queen Elizabeth. Queen Elizabeth का reign कब था? Second half of the 16th century. तो Kenilworth is set during the reign of Queen Elizabeth, England in 16th century. उसके बाद सीक्वेंस में ही देखें, ये भी 16th century में सेट हो गई दो novels, but they are set in Scotland. Kenilworth is set in England during the reign of Queen Elizabeth. और उसके बाद एक नॉवेल आई द फॉर्चून्स ऑफ निजेल, that was set in the reign of James I. The Fortunes of Nigel, set during the reign of James I. और जेम्स फर्स्ट का रेन कब था? First quarter of the 17th century. James I came to the throne in 1603 after the demise of Queen Elizabeth, and he died in 1625, and after that his son Charles I came to the throne in England. Or from 1603 to 1625, this was the time period of James I, and the novel The Fortunes of Nigel is set during the reign of James I. Right, उन्हीं के जेम्स फर्स्ट के रेन में सेट है, and the novel was published in 1822. Right, The Fortunes of Nigel was published in 1822, and as far as Kenilworth is concerned, it was published in 1821. Kenilworth was published in 1821. Clear है? कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए. James Scott wrote many kinds of novels, including the conventional, domestic or other social novels, novel of manners जिसको कहा जाता है. But he was his eminence in English literary history to his position as a creator of historical novel. He had a deep sense of history, and his mind was an encyclopedic storehouse of various historical dates, especially those relating to his own country.
story in sentiment and a lover of the picturesque. He had a natural attachment for the Middle Ages and chivalry. He had made his mark as a storyteller in verse. The verse medium, however, is cramping, and only a fraction of his genius had found expression in his verse narratives. The novel provided a large canvas for the expression of his varied gifts and endowments, his all embracing sympathies, rich humor, deep understanding of human character, especially of the common people. And he put the best of himself in his novels, especially in those relating to Scotland. He wrote more than 24 novels, and at least half of them are devoted to Scotland. Right? He himself was a Scotsman, he himself was a Scottish, and he wrote around 24 of novels, and out of 24, half of them were related to the history of Scotland. Clear James first himself was James sixth in Scotland, and when he came to England he became James first. राइट तो ये सब उसमें जो है जाकर के सेट हो जाती हैं. जी रेणु यादव जी बिल्कुल नहीं, आप आई होप कि यू वर present in yesterday's class. Few students were also asking about the dates. Are dates important to remind of novels? No, not at all. Right? Dates are not important, but you have to remember the names of the novels that are important. Right? वो important है, वहां पर आप काम करिएगा. It's okay, Geeta. You will get that class in recorded form, and today you are live, so there is no need to watch the video again. But if it requires, if you think that the rewatching is also useful, then you could definitely watch the videos in recorded form. Clear? We could proceed now. सर आप कैसे लाइट को कवर करते थे? आपने टाइम में मीन्स एज ए स्टूडेंट, अरे क्या लिखा है, आप कैसे लिटरेचर को कवर करते थे अपने टाइम में मीन्स एज ए स्टूडेंट? श्वेता जी, आई एम स्टिल ए स्टूडेंट and I will remain a student throughout my life, and I have to cover as much syllabus as you have to cover. You have to appear in your examination only. You are an individual, and I am not an individual. I am collective. All of you are in me, and that's why I have to prepare a lot. I have to deliver a lot. Everyone is expecting from me, and that's why I have to come to true to your words, to your dreams. I will always remain a student, and as far as those times are concerned, when I used to be a part of the university, how did I cover the syllabus? How did I cover the literature? Actually, I had never been a voracious reader, right? मैं तो बहुत entertainment वाला, funny कह लीजिए, में बिलीव करने वाला आदमी था. बहुत कम पढ़ता था, बट जो भी पढ़ता था बहुत सीरियस और थरली. तो सीरियस पढ़िए, थरली पढ़िए, कम पढ़िए, मैटर नहीं करता, बट जो पढ़िए ढंग से पढ़िए, और ढंग से अगर आप पढ़ेंगे then that will definitely help you in your examination. सर आई जस्ट ज्वाइंट, आपने अभी ज़्यादा तो नहीं लिखवाया है, ज़्यादा तो नहीं करवाया है. दीप्ति, मैं कभी ज़्यादा नहीं करवाता हूँ, मैं हमेशा थोड़ा ही करवाता हूँ, बट आप टाइम पे रहा करो. जो आपने किया ही नहीं, वो ज़्यादा हो या कम उसका क्या फ़र्क पड़ता है. आप जहाँ से आए हैं आप वहाँ से चीज़ें पिक करना शुरू करिए. जहाँ से आप ज्वाइन करें, योर टीचिंग वे इज द बेस्ट. सर थैंक यू गीता. शेक्सपियर अगर आप ऑनलाइन पढ़ाते तो ज़्यादा इंटरेस्ट आता और प्रिपेयर हो जाता अच्छे से. ये सारी चीज़ें रजनी जी पूरी नहीं हो सकती, क्या किया जाए. हम तो पढ़ाने के लिए ही आए थे, लेकिन तो DSSB ने डेट अनाउंस करके सारे मामले पर पानी फेर दिया है. और जब DSSB ने डेट अनाउंस कर दी तो वी वर हेल्पलेस. अपार्ट फ्रॉम सेंडिंग यू द वीडियोस, हमारे पास कोई चारा नहीं था. अदरवाइज मैं शेक्सपियर को अलग से ही पढ़ाता, और शेक्सपियर पर मेरा स्पेशलाइजेशन भी है.
एक और इंग्लिश नॉवलिस्ट के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं, और वो इंग्लिश नॉवलिस्ट जो है उसका नाम है थॉमस लव पीकॉक। हाँ, रेनिंग तो रात से ही हो रही है, बट जब तक नहीं हो रही है रेनिंग, नेटवर्क है तब तक क्लास चल रही है। नेटवर्क जाएगा क्लास चली जाएगी। तो हमने भी सोचा कि जब तक नेटवर्क रहे तब तक ही कुछ काम कर लिया जाए। इसलिए देखिए आज 9 o'clock से जस्ट 1 मिनट पहले ही स्टार्ट हो गई है। अरे सृष्टि जी, आज वीडियो उपलब्ध करा दूंगा भाई, क्यों परेशान हो रही हैं? यू विल गेट द वीडियो टुडे। आई टॉक टू द टेक्निकल टीम फॉर द अपलोडेशन ऑफ द सेम। थॉमस लव पीकॉक was a romantic essayist, romantic novelist, and critic. And apart from all these three, he was an officer in the East India Company. राइट, इसलिए भी इंडिया वालों के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के एक ऑफिसर थे, एंड ही वॉज वेरी क्लोज फ्रेंड टू पर्सी बिशे शैली। और पर्सी बिशे शैली की एक पोयम की टाइटल भी इन्होंने दिया था। अगर आपने शैली की वीडियो देखा होगा तो आपको वीडियो में पता चला होगा कि किस पोयम की टाइटल जो है थॉमस लव पीकॉक ने दिया था। और दूसरी बात, शैली से एक और एफिलिएशन में ये भी थे कि इन्होंने एक ऐसे लिखा था, और उस ऐसे के जवाब में पीबी शैली ने एक दूसरा ऐसे लिखा, और उस ऐसे का नाम था द डिफेंस ऑफ पोएट्री, एंड दैट बिकेम अ माइलस्टोन इन द पोएटिकल एंड द लिटरेरी क्रिटिसिज्म। क्लियर, वो थॉमस लव पीकॉक का ही एक अटेम्प्ट था। अगर हम इनके वर्क्स की बात करें, नॉवेल की बात करें, तो इनकी एक नॉवेल है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, और वो है नाइटमेयर एबी। अब कंफ्यूज नहीं होइएगा, वर्ड्सवर्थ की टिंटन एबी है, और थॉमस लव पीकॉक की नाइटमेयर एबी है। और नाइटमेयर एबी 1818 में पब्लिश हुई थी, और नाइटमेयर एबी इज अ नावेला। राइट, नाइटमेयर एबी क्या है? नाइटमेयर इज अ नावेला which makes good natured fun of contemporary literary trends। कंटेम्प्ररी लिटरेरी ट्रेंड्स का एक फन है, एक उसका इंजॉयमेंट है। और ऐसे भी यहाँ पे कैरेक्टर्स हैं जो रियल लिटरेरी फिगर्स पर बेस्ड हैं। रियल कैरेक्टर्स पर भी बहुत सारे आज कैरेक्टर्स सेट हैं। जैसे कैरेक्टर है स्काईथॉर्प, and it is assumed that the character of Skythorpe is very much similar to the friend of very similar to those of पीबी शैली। राइट, पीबी शैली से थोड़ा बहुत मिलता जुलता है स्काईथॉर्प। वैसे सब नेट के क्वेश्चन हैं, आपके पेपर में ये सब क्वेश्चन नहीं आएंगे। बस आप नाइटमेयर एबी का नाम याद रखिएगा, आपका काम वहीं से हो जाएगा।
एक कैरेक्टर है मिस्टर फर्डिनांडो फ्लॉस्की। फर्डिनांडो फ्लॉस्की or the character of Ferdinando Flasky is based on Samuel Taylor Coleridge. Samuel Taylor Coleridge पर बेस्ड है द कैरेक्टर ऑफ फर्डिनांडो फ्लास्की। क्लियर? तो ये वो राइटर्स हैं जिन पर इन्होंने रियल कैरेक्टर्स को बेस्ड किया है। तो बहुत कुछ आपको नहीं जानना है, बस नाइटमेयर एबी का नाम जानिएगा और थॉमस लव पीकॉक से फिलहाल एक ये वर्क इम्पॉर्टेंट है। और जो इनका दूसरा वर्क है जिस पर के लिए ये खास करके और फेमस हो गए, वो इनका वर्क था द 4 एजेस ऑफ पोएट्री। द 4 एजेस ऑफ पोएट्री। जी हाँ, बिल्कुल आपको नाम याद आ रहा होगा इनका। 4 एजेस ऑफ पोएट्री इन्होंने लिखा था और पोएट्री के को 4 एज में इन्होंने बांटा था और उस 4 एज के रिस्पॉन्स में पीबी शैली का ऐसे आया था द डिफेंस ऑफ पोएट्री। तो द 4 एजेस ऑफ पोएट्री वाज रिटन बाय थॉमस लव पीकॉक एंड द डिफेंस ऑफ पोएट्री वाज रिटन बाय पीबी शैली इन थॉमस लव पीकॉक्स रिस्पॉन्स। और इसी में जो है द डिफेंस ऑफ पोएट्री में पोएट्री को डिफाइन करते हुए शैली ने कहा था कि पोएट्स आर द अनएक्नॉलेज्ड लेजिस्लेचर्स। राइट, अनएक्नॉलेज्ड लेजिस्लेचर्स होते हैं पोएट्स। जी सृष्टि जी, स्काइथॉर्प शैली का है? प्लीज रिप्लाई। जी नहीं, स्काइथॉर्प कैरेक्टर है द नाइटमेयर एबी में जिसकी कैरेक्टरिस्टिक्स शैली की तरह हैं, मतलब कि स्काइथॉर्प कैरेक्टर शैली के कैरेक्टर पर बेस्ड है, बिल्कुल वैसे जैसे फर्डिनांडो फ्लास्की का कैरेक्टर सैमुअल टेलर कॉलरिज के कैरेक्टर पर बेस्ड है। सर आपने एलिजाबेथन एज नहीं पढ़ाया क्या? नहीं बबीता जी, मैं तो कुछ नहीं पढ़ाता हूँ, मैं तो सिर्फ टाइम पास कर रहा हूँ, है कि नहीं? कुछ पढ़ाया ही नहीं हूँ मैं। आई होप कि आपने वीडियोस एक भी नहीं देखी होंगी ना, और अगर देखी होंगी तो आपको एलिजाबेथन एज में जो यूनिवर्सिटी विट्स तक हमने कराया है, शैली आपने जो है स्पेंसर कराया है, हमने सिडनी कराया है, हमने मार्लो कराया है, हमने शेक्सपियर करवाया है, शेक्सपियर की वीडियोस आपको मिली हैं, और आज आप आकर हमसे ये कह रही हैं एलिजाबेथन एज आपने नहीं कराया क्या? कितने दिन हुए आपको एडमिशन लिए और आपने कितना पढ़ा है बबीता? It's always easy to point your finger at someone, but it is always tough to look at the 3 fingers that are indicating towards you. चलिए कोई बात नहीं, बच्चे हैं, बच्चे तो बच्चे ही होते हैं। क्या बता रहा था? आपने रील काट दी। फोर एजेस ऑफ पोएट्री के रिस्पॉन्स में द डिफेंस ऑफ पोएट्री, और एक वर्क इनका और फेमस है, वो था द मेमोयर्स ऑफ पीबी शैली, द मेमोयर्स ऑफ शैली। मेमोयर्स ऑफ शैली भी थॉमस लव पीकॉक का वर्क है। इतनी चीजें जानिए यहां से, और आपको कुछ भी नहीं जानना है। रोमांटिक पोएट्स की तरफ वापस लौटते हैं। रोमांटिक पोएट्स को 2 ग्रुप में बांटा जाता है, एक ओल्डर जनरेशन ऑफ पोएट्स है और एक यंगर जनरेशन ऑफ पोएट्स है। ओल्डर जनरेशन में कौन कौन है? ओल्डर जनरेशन में हम वर्ड्सवर्थ को रखते हैं, कॉलरिज को रखते हैं, रॉबर्ट सदे को रखते हैं और वाल्टर स्कॉट को रखते हैं। जब हम यंगर जनरेशन की बात करते हैं, सेकेंड हाफ ऑफ द रोमांटिक पीरियड की, तो उसमें लॉर्ड बायरन है, पीबी शैली हैं और फिर कीट्स हैं। लॉर्ड बायरन, पीबी शैली एंड कीट्स।
तो शैली और कीट्स के तो आपको वीडियोस अवेलेबल है आपके पोर्टल पर। और थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं उनके लॉर्ड बायरन के बारे में। जी, मेमोयर्स ऐसे नहीं है, मेमोयर्स है ये एक कलेक्शन है कई सारे आर्टिकल्स का। क्या करने जा रहा था लॉर्ड बायरन? पूजा जी जहां से आ रहा है फिर वहीं पढ़ लीजिए, फिर आपको हमारी क्या जरूरत है। हाँ, वहीं पढ़ लीजिए। सर नमस्कार। नमस्ते भैया, बिजली बिल आ गया है। जी जी। जी नीलम, ओल्ड जनरेशन में वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज, रॉबर्ट सदे, जिनको लेक पोएट्स कहा जाता है। और अगर ये पेपर में क्वेश्चन आ जाएगा कि पोएट ऑफ लेक्स किसको कहा जाता है, जब पोएट्स ऑफ लेक तब सिर्फ वर्ड्सवर्थ को कहा जाता है। लेक पोएट्स में कौन कौन है, तो कॉलरिज, सदे और वर्ड्सवर्थ है। क्लियर। यंगर जनरेशन में लॉर्ड बायरन है, पीबी शैली है और जॉन कीट्स हैं। ये यंगर जनरेशन के पोएट्स कहे जाते हैं। जी, नाम तो बता रहा हूं कामिनी, लिख देता हूं। चलिए, वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज, रॉबर्ट सदे, ये तीनों लेक पोएट्स के नाम से भी जाने जाते हैं। और अगर हम इसमें वॉल्टर स्कॉट भी जोड़ दें, जिनकी बात अभी हम कर रहे थे एज नॉवलिस्ट के रूप में, तो ये ओल्डर जनरेशन बन जाती है। लॉर्ड बायरन, पीबी शैली और जॉन कीट्स, इनको यंगर जनरेशन कहा जाता है। ये यंगर जनरेशन ऑफ रोमांटिक पोएट्स हैं। सर इनका नाम लॉर्ड से क्यों स्टार्ट होता है? जी, ये क्वेश्चन है आपका, ये मैं बता देता हूं। ठीक है, कामिनी और नीलम दोनों लोगों ने पूछा था ओल्डर जनरेशन, इसलिए ओल्डर जनरेशन यहां पर लिख दिया। लॉर्ड और सर, कुछ लोगों का नाम दीप्ति सर से भी शुरू होता है और कुछ लोगों का नाम लॉर्ड से शुरू होता है, और ये सब उनके टाइटल्स हुआ करते थे। इनका नाम लॉर्ड बायरन नहीं, इनका नाम था जॉर्ज गॉर्डन बायरन। राइट, क्या नाम था इनका? ओरिजिनल जो नाम था वो था जॉर्ज गॉर्डन बायरन। ये इनका नाम है, जॉर्ज गॉर्डन बायरन इनका नाम था। और ही वॉज द सिक्स्थ लॉर्ड बायरन, was born in London and succeeded to the title at the age of 10 on the death of his great uncle, the wicked Lord Byron, who had sold a great part of the family estates. The poet was the only child of Captain John Byron by his second wife, a Scottish heiress. His first wife was a Marchioness whom he had married. After first seducing her,
and squandering her property, राइट। तो ये उनका नाम था और लॉर्ड उनको टाइटल मिली थी, तब वो जॉर्ज गॉर्डन से हट करके लॉर्ड बायरन हो गए थे। लॉर्ड बायरन इज फेमस फॉर हिज voluptuous and famous for his immoral character, immoral behavior. He had number of affairs in England, and one time it was said that the children of Lord Byron जो है they are roaming across London. लंदन के हर गली में उनके जो है बच्चे पाए जाते थे, हर गली में वहां पे घूमते रहते थे। आई थिंक कि आवाज आ रही है प्रेरणा, कोई दिक्कत नहीं है। परमिला जी ने भी कहा है जी आवाज नहीं आ रही है, तो कौन कौन की आवाज नहीं आ रही जरा बताइए। आई होप कि आवाज सबके आ रही है, आप थोड़ा लेट ज्वाइन किए होंगे, ये हो सकता है, राइट। तो इनके कई सारे अफेयर्स थे और कई सारे बच्चे भी, उन सब की खैर हमको आपको जरूरत नहीं है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है इनका 1807 में उनका एक वर्क आया था, नाम था उसका आवर्स ऑफ आइडलनेस। इसकी एक फोटो खींच लो और फिर दे आओ। थैंक यू परमिला। आवर्स ऑफ आइडलनेस, a collection of poems in heroic couplet, लॉर्ड बायरन का। क्लियर, कलेक्शन ऑफ पोएम्स इन हीरोइक कपलेट था। हीरोइक कपलेट 18वीं सेंचुरी का सबसे पॉपुलर मीडियम हुआ करता था और रोमांटिसिज्म वाज अ रिवोल्ट अगेंस्ट दिस मैकेनिकल हीरोइक कपलेट। और हुआ क्या कि आफ्टर द पब्लिकेशन ऑफ द आवर ऑफ आइडलनेस ही वाज हाईली क्रिटिसाइज्ड बाय अ स्कॉटिश क्रिटिक। स्कॉटिश क्रिटिक एक था, उसका नाम था फ्रांसिस जेफरी। फ्रांसिस जेफरी ने इसको बहुत बुरी तरीके से क्रिटिसाइज किया एक जर्नल में, और उसको पब्लिश भी किया था, एक मैगजीन थी एडिनबर्ग रिव्यू में। और इन रिस्पॉन्स टू दैट हाई क्रिटिसिज्म मिस्टर जो है लॉर्ड बायरन रोट अनदर वर्क, और उस वर्क का नाम इन्होंने दिया इंग्लिश बार्ड्स एंड स्कॉच रिव्यूअर्स। English bards and Scotch reviewers, राइट। मतलब पहले ये पोयम इन हीरोइक कपलेट हाईली क्रिटिसाइज्ड बाय फ्रांसिस जेफरी, फ्रांसिस जेफरी ने इसको क्रिटिसाइज किया, और देन ही रोट द पोयम इंग्लिश बार्ड्स एंड स्कॉच रिव्यूअर्स। इंग्लिश बार्ड्स, बार्ड्स मींस पोएट्स, और रिव्यूअर्स का मतलब स्कॉच का मतलब स्कॉटिश, और रिव्यूअर्स का मतलब इनोवेटिव क्रिटिक्स, राइट। तो पोएट्स इंग्लिश हुआ करते थे और रिव्यूअर्स स्कॉटिश हुआ करते थे। ये उनका जवाब था फ्रांसिस जेफरी के क्रिटिसिज्म पर। क्लियर, ही द स्कॉटिश एडिटर ऑफ द रिव्यू बट ऑल पोएट्स ऑफ द रोमांटिक स्कूल्स जो थे, यहां पर उन्होंने वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज, सदे, स्कॉट सबको क्रिटिसाइज कर दिया था इस पोएम में। और सिर्फ क्रिटिसाइज ही नहीं किया रोमांटिक पोएट्स को, आज है लॉर्ड बायरन ने, बट लॉर्ड बायरन आल्सो अप्रिशिएटेड अलेक्जेंडर पोप एंड ड्राइडेन एंड देयर यूज ऑफ हीरोइक कपलेट, राइट। सिर्फ क्रिटिसाइज ही नहीं किया आज है रोमांटिक्स को, अपने कंटेम्पररी को, बट 18वीं सेंचुरी पोएट्स को, 17वीं सेंचुरी के जॉन ड्राइडेन को हाईली अक्लेम भी किया, उनको बहुत उनकी प्रशंसा भी किया। हाँ जी श्वेता, कवि, चंचल, ज्योति, परमिला, सबको वॉइस आ रही है। प्रेरणा में ही थोड़ी प्रॉब्लम थी, एंड आई होप कि उनकी भी प्रॉब्लम अब क्लियर हो गई होगी।
कभी कभी नेटवर्क का इशू होता है और नेटवर्क के इशू की वजह से वॉइस जो है इंटरप्ट कर जाती है, बाकी ऐसा नहीं होता है। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। तो उन्होंने ये वर्क लिख दिया और इसमें उन्होंने, अब अगर आपके पेपर में क्वेश्चन आता है कि इन विच वर्क लॉर्ड बायरन क्रिटिसाइज्ड हिज कंटेम्पररी एंड सीनियर रोमांटिक पोएट्स, तो आप उसका जवाब लगाएंगे इंग्लिश बार्ड्स एंड स्कॉच रिव्यूअर्स, राइट। और अगर ये क्वेश्चन आएगा इंग्लिश बार्ड्स एंड स्कॉच रिव्यूअर्स वाज रिटन इन रिस्पॉन्स टू, तो उसका जवाब आप लगाएंगे फ्रांसिस जेफरीज क्रिटिसिज्म ऑफ द पोएम बाय लॉर्ड बायरन, और उस पोएम का नाम था आर्ट्स ऑफ आइडलनेस, राइट। समझ में आया कुछ की नहीं? और उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट पोएम इनकी, वो उसका नाम है चाइल्ड हरोल्ड्स पिलग्रिमेज। नहीं अनूप, आपका पहला मैसेज आ गया है। चाइल्ड हरोल्ड्स पिलग्रिमेज, ये इनकी सबसे इंपॉर्टेंट पोएम है, फेमस फॉर मेनी रीजंस। ही his tour of the European continent between 1809 and 1811, 1809 से 1811 के बीच में इनका जो कॉन्टिनेंटल टूर था, उसके बाद जब ये वापस आए, then he wrote the first two cantos of Childe Harold's Pilgrimage. Published, the first two cantos were published in 1812, describing his journeys. फर्स्ट टू कैंटोज 1812 में इनकी जर्नीज को पब्लिश किया था, और इसी के लिए उन्होंने बोला था कि जो है ही अवोक वन मॉर्निंग एंड फाउंड हिमसेल्फ फेमस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हु अवोक वन मॉर्निंग एंड फाउंड हिमसेल्फ फेमस, तो वो अवोक वन मॉर्निंग एंड फाउंड हिमसेल्फ फेमस ये और कोई नहीं बल्कि लॉर्ड बायरन ही है। ये और ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ हिज पोएट्री, और उनकी पोएट्री कौन सी? चाइल्ड हरोल्ड्स पिलग्रिमेज, जहां पर उन्होंने अपने फर्स्ट टू कैंटोज में अपनी जर्नी को डिस्क्राइब किया था। थर्ड और फोर्थ कैंटो चाइल्ड हरोल्ड के 1816 और 1818 में आए थे, राइट। तो फर्स्ट कैंटोज 18, फर्स्ट टू कैंटोज 1812, फिर 1816 और फिर 1818। यहां पर टू कैंटोज, यहां पर वन और फिर यहां पर वन, तो देयर आर टोटल 4 कैंटोज इन चाइल्ड हरोल्ड्स पिलग्रिमेज। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। The poem describes the travels and reflections of a pilgrim who, satiated and disgusted with a life of pleasure and dissipation, seeks distraction in a foreign travel. The imaginary pilgrim, despite the author's denial, is no other than Byron himself. It is his own debauched life at home, जिसको वो डिस्क्राइब करते हैं अपने इसमें, मतलब जो उनकी खुद की लाइफ है उसी को वो एक्सप्लेन किया है उन्होंने अपने इस पोयम में। बायरन की ये जो पोएम है चाइल्ड हरोल्ड्स पिलग्रिमेज, ये दो और हिसाब से बहुत फेमस है। एक तो ये कि एक ट्रेवलॉग है ये, और जो दूसरा रीजन है यहां पर एक कंसेप्ट जो है देते हैं जिसको बायरोनिक हीरो कहा जाता है।
राइट। बायरनिक हीरो का कंसेप्ट जो है इसी पोएम से उनके आता है। बायरनिक हीरो क्या होता है वैसे, कि बायरनिक हीरो एक फिक्शनल कैरेक्टर ही होता है, जैसे कि सारे कैरेक्टर फिक्शनल ही होते हैं। लाइक बायरन हिमसेल्फ, a Byronic hero is a melancholy and rebellious young man distressed by a terrible wrong he committed in the past. Right? जो कमिट उसने पास्ट में जो उसने सिन किया है उसी से वो डिस्ट्रेस्ड होता है, डिसगस्टेड होता है, परेशान होता है, और उसके लिए उसको डिफेंड करने के लिए सब कुछ करने को तैयार होता है। उसी को बायरनिक हीरो कहा जाता है। Both Byron's own persona as well as his characters from his writings are associated or considered to provide defining features of the character type. The Byronic hero first reached a very wide public in Byron's semi-autobiographical epic narrative poem Child's Herald Pilgrimage. एक पॉइंट यहां से यह भी किए, जो है सेमी ऑटोबायोग्राफिकल एपिकल पोएम है, 4 कैंटोज में है। द फर्स्ट 2 कैंटोज वर पब्लिश्ड इन 1812 एंड द रिमेनिंग 2 इन 1816 एंड 1818 रेस्पेक्टिवली। क्लियर। और वहीं पर इन्होंने बायरनिक हीरो जैसे कैरेक्टर को क्वाइन किया है। बाद में बहुत सारे वर्क में बायरनिक हीरो को इंट्रोड्यूस किया गया, जैसे आपने एक नॉवेल पढ़ा होगा द वैम्पायर, राइट, उसमें बायरनिक हीरो है। वुदरिंग वाइट्स में हीथक्लिफ बायरनिक हीरो है, और जेन आयर जो कि शार्लॉट ब्रांटे की नॉवेल है उसमें भी बायरनिक हीरो का एक कंसेप्ट है, और आपने उन सबको पढ़ रखा है। वीडियो स्टॉप हो रही है ज्योति जी बिकॉज ऑफ द नेटवर्क इश्यूज, देयर इज नो फॉल्ट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू बबीता। बबीता ने लिखा है यू एक्सप्लेन वेरी वेल। चाइल्ड हरोल पिलग्रिमेज सेमी ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है लॉर्ड बायरन की, राइट। और वैसे ही इतना डिसइल्यूजनड और इतना डिस्ट्रेस रोमांटिक एज में है क्यों, कि चाइल्ड हरोल्ड्स और बायरनिक हीरो जैसे कैरेक्टर्स इन्वेंट करने पड़ते हैं। ये पूरा डिसइल्यूजनमेंट था फ्रेंच रिवॉल्यूशन का। एक्चुअली पीपल हैव लॉन्ग बिग एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। पोएट्स लाइक वर्ड्सवर्थ ने तो ये भी कहा था कि इट वाज ब्लिस टू बी यंग ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन, लेकिन उसके बाद जैसे ही टेरर का रेन शुरू होता है वैसे ही सारी ये जो कल्पनाएं थी, इमेजिनेशन थी, डिसइल्यूजन में क्रिएट होना शुरू हो जाती हैं, और उसी का रिजल्ट था कि बायरन ने बायरनिक हीरो जैसे कैरेक्टर को क्रिएट किया था, राइट। In a wider sense, the poem it is an expression of the melancholy and disillusionment felt by a generation weary of the wars of the post-revolutionary and Napoleonic eras. Child, CHILDE का मतलब क्या होता है? It is a medieval title for a young man who was a candidate for knighthood. जिसको knighthood देना होता था उसी को जो है टाइटल दी जाती थी। और चाइल्ड की तो चाइल्ड हरोल्ड का मतलब है हरोल्ड इज गोइंग टू बी गिवन अ चाइल्ड टाइटल, और टाइटल वाज एन ऑनर टू हिम एंड दैट वाज नाइटहुड की, उसी को चाइल्ड कहा जाता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट पोएम जो लॉर्ड बायरन की है, जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है फ्रॉम बायरन्स पर्सपेक्टिव, और वो है डॉन जून।
ये है सर, प्लीज शेयर पीडीएफ ऑफ प्रीवियस ईयर जी ट्रिपल एस बी पेपर एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। Anup ji, you can access the previous year paper of GSSB from the GSSB website. I don't have the paper, and I keep on telling you the important questions, expected questions during my video lectures. आपको भी आज ही आपने शायद क्लास अटेंड करके आपने देखा होगा कि मैंने कितने सारे क्वेश्चंस को आपको बताया कि इन पर कैसे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। और दूसरी बातें जानिए अनूप भाई की जो कोचिंग की बात होती है ना, तो कोचिंग में तो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस ही बताए जाते हैं, इंपॉर्टेंट चीजें ही पढ़ाई जाती हैं। अगर हम लिटरेरी हिस्ट्री को बहुत डीप में पढ़ने जाएंगे तो लिटरेरी हिस्ट्री नेवर एंडिंग फेनोमेनन है, कभी खत्म नहीं होने वाली है। तो वट एवर वी टीच हियर एट अध्ययन मंत्रा, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आप इसके लिए बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिए। हाँ, टेस्ट सीरीज जो आपको प्रोवाइड की जा रही है उसको थोड़ा ढंग से सॉल्व करिए, और फिर मैं भी प्रोवाइड करूंगा, आप उसको भी थोड़ा देखिएगा, एंड इट विल डेफिनेटली बेनिफिट यू फॉर योर एग्जामिनेशन। क्लियर, वहां आपको यहाँ से मदद मिलेगी निश्चित रूप से। राइट, बायरन के मैग्नम ओपस की बात कर रहे हैं तो डॉन जून उनका मैग्नम ओपस है। इट इज अ पोएम स्पैनिंग 17 कैंटोज, 17 कैंटोज में है, एंड ऑल द 17 कैंटोज वर नॉट रिटन एट वंस। राइट, उनको जो है गैप में भी उनको लिखा गया था, इकट्ठा नहीं लिखे गए थे। मींस डॉन जून 1818 से लेकर के और 1824 तक काम किया है लॉर्ड बायरन ने, एंड द पोएम रिमेन्ड इनकम्प्लीट। पोएम कंप्लीट नहीं हो पाई, पब्लिश नहीं हो पाई थी। इट इज सॉरी, पब्लिश तो हुई थी, इनकम्प्लीट रह गई थी, कंप्लीट नहीं हो पाई थी। और इट इज एपिक सटायर इसको कहा जाता है। राइट, बिल्कुल सटारिकल पोएम है ये, दैट पोर्ट्रेज डॉन जून नॉट एज अ वुमन। डॉन जून एक ग्रीक मिथ में आपने सुना होगा, देखा होगा कि डॉन जून था कौन? डॉन जून वाज अ वुमनाइजर। राइट, एक वुमनाइजर था। वुमनाइजर कौन होता है? वन हु सेड्यूसेस women of all ages irrespective of their ages। seducer होता है, वो वुमनाइजर होता है, और वही था डॉन जून। और ये खुद बायरन का ही कैरेक्टर है, बट यहाँ पर उन्होंने डॉन जून की थीम को रिवर्ट कर दिया है और ये कहा है कि इट वाज नॉट डॉन जून who seduces women, but it was जो है women who used to seduce डॉन जून। राइट, उल्टा कर दिया है कि वेमेन थी जो अट्रैक्ट करती थी डॉन जून को, एंड दे सीड्यूस्ड डॉन जून, नॉट डॉन जून सीड्यूस्ड देम। राइट, ये रिवर्सल ऑर्डर है डॉन जून, और ये उनके खुद के लाइफ की स्टोरी है लॉर्ड बायरन के, और उसी पर पूरा डॉन जून बेस्ड है। तो डॉन जून इज नन अदर देन मिस्टर लॉर्ड बायरन हिमसेल्फ। द जॉनर द पोएम जो चाइल्ड हेरोल्ड्स पिलग्रिमेज थी वो स्पेंसिरियन स्टेंजा में लिखी है, और डॉन जून इज रिटन इन अक्टोबर राइमा। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अक्टोबर राइमा 8 लाइन स्टेंजा फॉर्म होता है, और डॉन जून उसी 8 लाइन स्टेंजा फॉर्म में है। जी, मैग्नम ओपस ये नहीं होता जो आपने लिखा है श्वेता, ये होता है मैग्नम ओपस का मतलब होता है द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो सबसे इंपॉर्टेंट हो उसको मैग्नम ओपस कहा जाता है, और ये उनकी सबसे इंपॉर्टेंट पोएम है। राइट, द पोएटिकल नैरेटिव ऑफ डॉन जून is told in 16,000 lines, arranged in 17 cantos, written in Ottawa Rima. Each stanza is composed of 8 iambic pentameter lines with the couplet rhyming scheme A B A B A B C C। ये ऑटवा राइमा की राइम स्कीम है जो यूज किया है लॉर्ड बायरन ने अपनी इस पोयम में। क्लियर? चलिए, अब आपको रोमांटिक एज से
चार्ल्स लैम्ब को थोड़ा सा जानना है, और वो चार्ल्स लैम्ब में थोड़ा ही जानना है, बहुत कुछ नहीं, क्योंकि चार्ल्स लैम्ब ने बहुत कुछ लिखा नहीं है। बता देता हूं आपको, लगे हाथ। वैसे वीडियो देखोगे तो आपको बड़ी वीडियो देखनी पड़ेगी, और मैं यहाँ पर आपको कम में ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स चार्ल्स लैम्ब के बता देता हूँ। चार्ल्स लैम्ब एंड मैरी लैम्ब, ये ब्रदर एंड सिस्टर्स थे, सिबलिंग्स थे, और दोनों ही इनसेन हो जाया करते थे, पागल हो जाया करते थे, और दोनों ने कुछ समय अपनी जिंदगी के पागल खाने में बिताए भी थे। और मैरी को ज्यादा झटके आते थे, और टू टेक केयर ऑफ मैरी, चार्ल्स नेवर मैरिड, चार्ल्स ने कभी शादी नहीं की, ही रिमेन्ड अ लाइफ लॉन्ग बैचलर। चार्ल्स लैम्ब कॉलरिज के फ्रेंड भी थे, और कॉलरिज और चार्ल्स लैम्ब दोनों क्लासमेट भी थे, दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे। चार्ल्स लैम्ब को प्रिंस अमंग एसेइस्ट कहा जाता है। प्रिंस अमंग एसेइस्ट कहा जाता है चार्ल्स लैम्ब को। और चार्ल्स और मैरी दोनों ने मिलकर के शेक्सपियर के प्लेस का पैराफ्रेजिंग किया था, और वो पैराफ्रेजिंग अंडर द टाइटल टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर के। टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर 1807 में पब्लिश हुई थी, और इसमें इन्होंने 20 प्लेस की पैराफ्रेजिंग की थी। 14 प्लेस वर कवर्ड बाय मैरी एंड 6 बाय चार्ल्स। राइट, चार्ल्स ने 6 प्लेस और मैरी ने 14। मैरी ने कॉमेडीज को पैराफ्रेज किया था, और चार्ल्स ने ट्रेजेडीज को पैराफ्रेज किया था। ये एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और दूसरा ये कि चार्ल्स लैम्ब वाज बेसिकली एन एसेइस्ट, और चार्ल्स लैम्ब जब एसेइस्ट हैं तो किस टाइप के एसे लिखते हैं? रोमांटिक एज जाना किसके लिए जाता है? उसी के एसेस के लिए ये भी जाने जाते हैं। रोमांटिक एज इज नोन फॉर सब्जेक्टिविज्म। राइट, किस लिए जाना जाता है रोमांटिक एज? रोमांटिक एज सब्जेक्टिविज्म के लिए जाना जाता है। तो जो इनके एसेस हैं वो भी पूरी तरीके से सब्जेक्टिव एसेस होते हैं। इंडिविजुअलिटी उसमें पूरी तरीके से रिफ्लेक्ट होती है, वो पर्सनल एसेस होते हैं। और इनके एसेस जो है फुल ऑफ ह्यूमर एंड पाथोस होते हैं। ह्यूमर एंड पाथोस, और यही ह्यूमर एंड पाथोस जो है चार्ल्स डिकेंस के नॉवेल्स में भी होती है, और इनके एसेज भी वैसे चार्ल्स डिकेंस और इनमें बहुत ज्यादा एज डिफरेंस नहीं है। चार्ल्स लैम्ब के जो है लास्ट एसे ऑफ एलिया और चार्ल्स डिकेंस के नॉवेल्स एक ही टाइम लगभग आना शुरू हुए थे, या एक ही टाइम आए थे। उनका लास्ट था और उनका फर्स्ट, डिकेंस का फर्स्ट और लैम्ब का लास्ट। चार्ल्स के एसेज 1820 से ही पब्लिश होना शुरू हो गए थे, और एक जर्नल, एक मैगजीन आती थी लंदन से जिसका नाम ही था लंदन मैगजीन, और उसी लंदन मैगजीन में इनके इंडिविजुअल एसेज पब्लिश हुआ करते थे। और बाद में उन्हीं को इकट्ठा करके पब्लिश कराया गया 2 वॉल्यूम्स में। पहले जो आया उसका नाम था एशेज ऑफ एलिया। एशेज ऑफ एलिया, एलिया वाज द पेन नेम ऑफ चार्ल्स लैम्ब। और पेन नेम क्या? एलिया वाज एन इटालियन फेलो क्लर्क ऑफ चार्ल्स,
जो इनके साथ ईस्ट इंडिया कंपनी में जब ये काम करते थे साउथ सी हाउस में इंग्लैंड में लंदन में, तो वहीं इनके साथ काम करता था एलिया, और उसी के नाम से इन्होंने अपने एसेज लिखना शुरू किए थे। उसी को एसेज ऑफ एलिया 1823 में आया सबसे पहले, और उसके बाद लास्ट एसेज ऑफ एलिया पब्लिश हुआ। 1833 में लास्ट एसेज ऑफ एलिया उनका पब्लिश हुआ था। क्लियर? तो एसेज में तीन चार चीजें कि हिज एसेज आर सब्जेक्टिव, full of romantic imagination, his essays are full of humor and pathos, his essays are the real picture of his own society, of his own love affairs, of his own dream children, राइट। इनके एसेज होते थे, पहले लंदन मैगजीन में छपे थे, बाद में वो एसेज ऑफ एलिया और द लास्ट एसेज ऑफ एलिया में पब्लिश हुए। क्लियर? और इनकी सिस्टर जो थी, सिस्टर का भी इन्होंने एक इमेजिनरी नाम रख दिया था, और उस सिस्टर का नाम है एलिस। और एक बहुत अच्छा खासा इंपॉर्टेंट एसे भी है जिसका नाम था ड्रीम चिल्ड्रन अ रिवरी। ड्रीम चिल्ड्रन रिवरी नाम था। रिवरी का मतलब होता है डे ड्रीमिंग, राइट। तो उस डे ड्रीमिंग पर भी ऐसे इन्होंने लिखा है। कुछ पॉपुलर एसेज की बात करें तो उसमें तो ड्रीम चिल्ड्रन है, और एक उसमें ऐसे है द इनर टेम्पल, एक ऐसे है द साउथ सी हाउस, और एक ऐसे है जहां पर एक खुद पढ़ते थे क्राइस्ट हॉस्पिटल, जो नाम तो उसका हॉस्पिटल है बट इट वाज ए स्कूल फॉर द ऑर्फन्स एंड द पुअर चिल्ड्रन, और उसी का नाम इन्होंने ऐसे का दिया है। उस ऐसे का नाम है क्राइस्ट हॉस्पिटल 530 years ago। तो ये उनकी इंपॉर्टेंट एसेज हैं जिन पर क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। If you want to write the names of a few important essays by Charles Lamb, then you could write the names of the essays. The South Sea House, ये कैसे है, एक ऐसे है क्राइस्ट हॉस्पिटल, ये उनका ऐसे उनकी फ्रेंडशिप विद कॉलरिज, और उनकी स्टेइंग एट क्राइस्ट हॉस्पिटल बोर्डिंग स्कूल में जो था उस पर है 530 years ago की। फाइव एंड 30 years ago की। एक है ऑल फूल्स डे, वैलेंटाइंस डे, इम्परफेक्ट सिंपैथीज, ऑल फूल्स डे, वैलेंटाइंस डे, इम्परफेक्ट सिंपैथीज, मॉडर्न गैलेंट्री, ड्रीम चिल्ड्रन अ रिवरी, वो नाम आपने जो है लिख ही लिया है। द प्रेज ऑफ चिमनी स्वीपर्स, और एक ऐसे था इनका द कन्वेलिसेंट, द कन्वेलिसेंट, और एक ऐसे है ओल्ड चाइना, और एक द चाइल्ड एंजल अ ड्रीम। Is it by Mary? Nothing is by Mary. All the essays are by Charles himself.
द चाइल्ड अ ड्रीम, सॉरी, द चाइल्ड एंजल अ ड्रीम है। द चाइल्ड एंजल अ ड्रीम। Friends with such literary luminaries as Samuel Taylor Coleridge, Robert Southey, William Wordsworth, and William Hazlitt, Lamb was at the center of a major literary circle in England. He has been referred to by E.V. Lucas. E.V. Lucas was the biographer of Charles Lamb. E.V. Lucas was the biographer of Charles Lamb. And apart from essays, he right, I could say कि essays में ही इन्होंने कुछ इनके क्रिटिसिज्म के भी वर्क्स हैं जो इन्होंने लिखा है। और उस क्रिटिसिज्म में जो इनका एक वर्क और है इनका, जी सॉरी, इसी बार पीजीटी में आया था, द एडवेंचर्स ऑफ यूलिसिस। राइट, पेपर में ऑप्शन में दिया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वर्क बाय चार्ल्स लैम्ब, और उसमें द एडवेंचर्स ऑफ यूलिसिस के जगह पर द ग्रेट एडवेंचर ऑफ यूलिसिस दे दिया है। तो द ग्रेट एडवेंचर ऑफ यूलिसिस इनका वर्क नहीं है, इनका जो वर्क है उसका नाम था द एडवेंचर ऑफ यूलिसिस। और ये यूलिसिस से बहुत प्रभावित भी थे, जो कि ग्रीक पोएट होमर की एपिक थी ओडिसस, उसी का प्रोटैगनिस्ट है यूलिसिस। और इन्होंने एडवेंचर्स ऑफ यूलिसिस पर एक ऐसे जो है लिखा है और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर इन्होंने एक ऐसे लिखा है शेक्सपियरियन क्रिटिसिज्म पर, और उसका नाम है ऑन द ट्रेजेडीज ऑफ शेक्सपियर। On the tragedies of Shakespeare, right? On the tragedies of Shakespeare इनका ऐसे है शेक्सपियरियन ट्रेजेडी पर, क्लियर। और ऑन द ट्रेजेडीज ऑफ शेक्सपियर के बाद जो इनका क्रिटिसिज्म पर ऐसे है वो एक ऐसे है, उसका नाम है स्पेसिमेन ऑफ इंग्लिश ड्रामेटिक पोएट्स हु लिव्ड अबाउट द टाइम ऑफ शेक्सपियर। Specimens of English dramatic poets English dramatic poets who lived about the time of Shakespeare 1808 में। क्लियर। चार्ल्स लैम्ब ने ही कहा था कि शेक्सपियर के जो प्लेज है ना, खास करके किंग लियर के बारे में, कि वो अनस्टेजेबल प्ले है, इतनी ज़्यादा ट्रेजेडी स्टेज पर नहीं हो सकती हैं। इनकी एकमात्र नावल जो इनके लव अफेयर पर बेस्ड है, उस नावल का नाम था अ टेल ऑफ रोजामंड ग्रे, राइट, एंड ओल्ड ब्लाइंड मार्गरेट। इनकी एकमात्र नावल है, 1798 में आई थी। नाम उसका भी लिख देता हूँ, अ टेल ऑफ रोजामंड ग्रे।
ये इनकी नॉवेल है। एक इनकी ट्रेजेडी भी थी और उसका नाम था जॉन वुडविल। ये इनका ट्रेजिक प्ले है। और पोएट तो ये थे ही। पोएट में इनकी सबसे इंपॉर्टेंट जो पोएम है वो है फेयरवेल टू टोबैको। बस चार्ल्स लैम्ब से इतना ही। प्रोसोडी क्या होता है, कामिनी जी ने पूछा है। प्रोसोडी एक लिटरेरी डिवाइस है जिसमें फिगर ऑफ स्पीच भी होते हैं, जिसमें राइम रिदम और मीटर भी होता है, और जिसमें पोएट्री की टेक्निकलिटी पढ़ी जाती है, उस सबको प्रोसोडी ही कहा जाता है। क्लियर? तो आज सिलेबस अब आपका यहीं पर वाइंड अप हो रहा है। थैंक यू वेरी मच फॉर बेयरिंग विद मी। थैंक यू वेरी मच मेरे साथ बने रहने के लिए, आपके पेशेंस के लिए, आपके धैर्य के लिए, और आपको बहुत सारी शुभकामनाएं हैं हमारी अध्ययन मंत्रा की तरफ से, मेरी तरफ से। आप खूब मेहनत करिए, खूब वीडियोस देखिए, खूब वीडियो लेक्चर सुनिए, आप खुद के नोट्स बनाइए, खूब सारे आप ऑब्जेक्टिव पेपर सॉल्व करिए, और जहां पर डाउट्स हो, जहां पर क्वेश्चंस हो, आप उस क्वेश्चंस को इकट्ठा करिए, और जब भी मैं लाइव क्लास में आऊँ तो आप ये क्वेश्चंस को जो है आंसर से सहित उनको देखिए और उनको पढ़िए। क्लियर? तो ये सारी चीजें आपके लिए थी, कुछ छूटा नहीं है। फ्रॉम द क्लासिकल टू द मॉडर्न्स टू इंडियंस तक हमने सब कुछ कवर करा दिया है। अच्छे से पेपर दीजिए। जो कुछ बाकी है, जिसको आपको लगता है वो मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट राइटर्स नहीं थे, और उनको मैं अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के फॉर्म में जब भी शुरू करूंगा तो वहां पर कवर कर लूंगा। राइट जी। नीलम रानी जी, शेक्सपियर पर क्लास एक ले ले तो बड़ी कंफ्यूजन आपको भी हो जाएगी और हमको भी हो जाएगी, क्योंकि शेक्सपियर इज नॉट द सब्जेक्ट मैटर ऑफ अ सिंगल क्लास। एक क्लास ले लेंगे शेक्सपियर की तो हम उसमें आपको क्या बता देंगे शेक्सपियर पर, मुझे तो यही कंफ्यूजन है। इतने सारे वीडियोस में शेक्सपियर कवर नहीं हो पा रहे हैं, एक क्लास में क्या होगा जी। परमिला सिंह जी, आई विल गिव यू एमसीक्यूज, एंड एमसीक्यूज के साथ साथ मैं आपको सोल्यूशन भी दूंगा, डिस्कशन भी उसका करूंगा। सर प्लीज बता दीजिए मॉक टेस्ट कब अटेम्प्ट कर पाएंगे। पूजा शर्मा जी, टेक्निकल क्वेश्चन है, इट्स नॉट रिलेटेड टू माय टॉपिक एंड माय सब्जेक्ट। इफ यू हैव एनी इश्यूज इन आवर सब्जेक्ट तब आप मुझे यहाँ बताइए। सर लास्ट 3 लाइन बताना, किसकी लास्ट 3 लाइन अनूप भाई? डीएसएसबी के प्रीवियस पेपर आप किसी भी पुराने स्टूडेंट से पा सकते हो, वेबसाइट से पा सकते हो, DSSP की साइट पे जाइए, वहां पर भी मिल जाएगा जी। बबीता, these all videos are not in my recorded videos. Why? You should contact the technical team of Adyan Mantra. Definitely you will have all the videos there. और कुछ क्वेश्चन? सर अच्छा नहीं लग रहा है, आपकी क्लास नहीं होगी अब। ऐसा नहीं सोचिए दीप्ति जी, मेरी क्लास होगी, मैं आता रहूंगा, क्वेश्चंस पूछता रहूंगा, आपसे बात करता रहूंगा, आपसे मोटिवेट करता रहूंगा आपको टिल एग्जामिनेशन। आई एम विद यू। हाँ, बीच में एक हफ्ते की थोड़ा सा बिजी है शेड्यूल, तो हो सकता है क्लासेस ऊपर नीचे हो जाएं या ना भी किसी किसी दिन हो पाए, बट फिर भी 1 तारीख से मैं पूरी तरीके से खाली हो जाऊंगा, फिर आपके साथ रहूंगा, बिल्कुल टेंशन ना लीजिए। मैं आपको तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक आपकी क्लास जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए जी। ज्योति साहू जी, जब आप कहें, जहां आप कहें वहां पर मिलने को तैयार हूँ, फिजिकली वर्चुअली जैसा कहें आप, जहां बुलाएं मैं आ जाऊंगा। जी पूजा जी, एचजी वेल्स पर कोई वीडियो नहीं अवेलेबल है, बट एचजी वेल्स का नाम आपके वीडियो में जरूर मिल जाएगा। आप विक्टोरियन को देखिएगा, वहां पर आपको चीजें मिलेंगी। मेरी आदत हो गई ज्योति साहू जी, चलिए वीडियो कॉल कर लिया करना मुझे, ठीक है, आदत के लिए। और मेरे वीडियोस देखते रहिए, मैं तो आपके सामने रोज ही लाइव रहूंगा। जब भी मेरी याद आएगी वीडियो पे क्लिक करिएगा, डबल काम हो जाएगा, 2 in 1। लास्ट 3 नॉवेल्स अभी जो बताए हमने, अरे मैंने कौन सा नॉवेल बता दिया अनूप जी, कहाँ चले गए थे बीच में आप? मैं तो एसेस और उनकी बात कर रहा था, आप नॉवेल्स पर आ गए भाई। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, गुड लक, मिलेंगे जल्दी। पूजा जी आप भी कुछ करो ना, आप भी कुछ एमसीक्यूज करो, मैं भी कुछ एमसीक्यूज करवाता रहूंगा, और हम दोनों मिलके करेंगे तो बेहतर हो जाएगा पेपर। कुछ आप भी करिए। चलिए, थैंक यू।